Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today you are all going to attend your lecture number 7th of the online lecture classes by Mahad Salman. We are going to learn some important concepts today related to the operation on sets. Hope so. It's the second last class concerning about the test and the course. The learning outcomes that shall be discussed here are going to be: verify the commutative and associative properties of union and intersection. We have two basic operations that are known as union and intersection. These both have their own properties. First one is the commutative property and the other one called as the associative property. Union and intersection both are interlinked with each other. They are quite similar in case of these properties. I've told you earlier that whenever we are going to perform union between two sets or intersection between two sets, the answer is going to be same irrespective of the position of those sets. For example, if A union B is going to be operated, then B union A will going to be the same answer. Therefore, we are going to say here commutative property applies. So basically, we are going to study these two properties related to these two operations. Yes, remember, a set is a collection of well-defined and distinct objects. This is the most basic definition that we have discussed hundred of times in our lectures. So make sure now you remember this and you are very much experted in this term. What is basically commutative property of union? So the definition says commutative property of union is similar to addition. Now what is addition? We all know that 5 plus 7 is equal to 12, 3 plus 2 is equal to 5, 1 plus 4 is equal to 5, 7 plus 8 is equal to 15. This is basically the operation of addition. Now what does the commutative property of union says? Yes, this is known to you. You know that A union B is always equal to B union A, which is called the commutative property of union. Likewise, 7 plus 5 is equal to 5 plus 7. Now let's move towards the next slide. Let's solve a question from book. We are following book Countdown 7 second edition, and we are concerning about exercise 1. The last question, which is question number 12, we are going to solve here. Now question number states that we have to perform commutative property of union and intersection of sets. We can see that these all are union property of commutation. We can call them as union property of commutation or commutative property of union. For example, there are 3 sets involved. The question is incomplete in your book. I am writing the full question here. There are 2 and the third one set, which is called C set, is concerned here. Now we have to perform the commutative property in all of these sets. Now what is that means? What does that says? Let us consider the first one only, which is A union B. How we are going to solve? It's quite simple. If you are concentrated over here, then it's just a piece of cake for you. So let's solve the first part. So what does the first part says? A union B is equal to B union A. First of all, we have to make 2 columns here. First, for solving A union B, which is called the left hand side, as I've always solved these verification problems. Likewise, 2 columns
One is for the left hand side, the other one is for the right hand side. Now solving both at the both sides, we are solving A union B first and similarly B union A on the other side. If you have any doubt, just ask in the online lecture. So A union B, yes, what does A union B means? We are merging these two sets which are A and B. So first one comes first. First set, which is the A1, will come first and the B1 will be coming second. Now we are going to merge these both sets. Any common element will be written once and the not common element, uncommon elements will be written once. Obviously sets definition says that distinct elements are only concerned. Make sure every element is the distinct. None of the element is similar. Now let's take a look at the answer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Are these both the sets of A and B? Have we merged them both? Yes, we have merged them both. Now B union A. B union A says that B should be written first and A should be written secondly. Now take a look at here. When we are merging B union A, we have to make sure about the sequence, like ascending order. One comes first, second comes 3, then 3, then 4. Likewise we have done here. Are these both the same sets? We are going to see here. Here we can see that A union B is equal to B union A. So we can say that LHS is equal to RHS. अब मैं आपको इसका मतलब बताता चलूँ उर्दू में. यहाँ पर हम दो सेट्स को मर्ज कर रहे हैं. एक का नाम है A, एक का नाम है B. जब हमने A यूनियन B किया तब भी आंसर सेम आया, B यूनियन A किया तब भी आंसर हमारा सेम आया. तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारी लेफ़्ट पे साइड है वो बराबर है राइट साइड के, यानी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन अप्लाइज. बात समझ आ रही? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड पार्ट. सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू B यूनियन C एंड देन C यूनियन B. लाइकवाइज वी हैव मेड 2 कॉलम्स. ठीक है, 2 कॉलम्स बना लिए जिसके अंदर एक के अंदर B यूनियन C सॉल्व कर रहे हैं. देन इन द नेक्स्ट कॉलम वी आर गोइंग टू सॉल्व C यूनियन B. वी हैव रिटन द फर्स्ट वन फर्स्ट, B पहले लिख लिया, फिर C लिख लिया. बीच में किसका ऑपरेशन कर रहे हैं? यूनियन का ऑपरेशन कर रहे हैं. याद रखिएगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है यूनिवर्सल और यूनियन को अलग करने का. आपके पास ऑप्शन है कॉपीज़ में, आप खुद बना रहे हैं तो आप यूनियन और यूनिवर्सल का फ़र्क अच्छी तरह जानते हैं. आप प्लीज़ उसको सही तरह बनाइएगा. C यहाँ पर पहले लिखा गया है और B यहाँ पर सिमिलरली बाद में लिखा गया है. नेक्स्ट देखें, दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है. कौन सा? 6 कॉमन एलिमेंट है. आप गौर से देखें, दोनों में 6 एक ही दफ़ा कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पर 6 को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे क्योंकि द सेट डेफिनेशन सेज दैट वी हैव टू ओनली कंसिडर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. उससे पहले नोट कर लें, क्या दोनों सिमिलर हैं? जी बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं. 2 3 6 8 10 12 18 21 द सेम एलिमेंट्स अप्लाई हियर. ठीक है, या there is one mistake here. I've just not written 4, so it will consider 4 because 4 is mentioned here. ठीक है, so 4 is here and we can see that these both are equal. So we will conclude that, हम ये conclude करेंगे. Here we can see that B union C is equal to C union B, which means left hand side is equal to right hand side. Solve part 3 by your ओन. ठीक है, मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए, आपने तीसरा पार्ट अपने ओन से करना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. व्हाट डज इंटरसेक्शन मीन्स? यू नो दैट इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन थिंग बिटवीन द बोथ सेट्स.
अब हम यहाँ पर अगर कंसिडर करें कि दोनों में कॉमन थिंग्स क्या होंगी तो वो कहलाई जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। गौर से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सिमिलर टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एडिशन, यहाँ पर एडिशन भी मल्टीप्लिकेशन भी, पिछली स्लाइड में भी ये भी लिख सकते थे कि मल्टीप्लिकेशन से भी होल्ड कर सकती है। यहाँ गौर से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। देखें, बात समझने की कोशिश करें कि अगर दो सेट्स, चाहे जो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम माइनस नहीं कर रहे, माइनस कर रहे होते तो आंसर डिफरेंट आता, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आंसर सिमिलर आएगा। ठीक है, चलें। लाइक 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3, लाइक 2 + 5 इज इक्वल टू 2 + 5 और 5 + 2, 5 + 2 यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। लेट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन 12 बट विद इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। हमने इंटरसेक्शन के लिए सेम क्राइटेरिया रखा, बस हमने 3 पार्ट्स कौन से ऐड कर लिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। चलें अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हमें ये सॉल्व करना सीखना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, दोनों स्लाइड्स पर एक एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एक जगह लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड उनको बताता चलूँ जिनको इसमें इशू है। देखो, इक्वल टू से लेफ़्ट पे जो साइड आ रही है वो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू से जो राइट साइड आ रही है वो आ रही है आपकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मैंने कहाँ लिखी है बेटा, इधर लिखी है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड कहाँ लिखी है, लेफ़्ट पे लिखी है। ठीक है, चलें। दोनों सेट्स जहाँ पर ए पहले आ रहा है उसको ए पहले को लिखा है, फिर इसके बाद बी आ रहा है तो उसको बी को बाद में लिखा है। सिमिलरली यहाँ बी पहले आ रहा है तो बी को पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा। चलें अब देखें गौर से, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो एम्प्टी सेट होता है। याद आया आप लोगों को, व्हेन नथिंग इज देयर देयर इज ओनली वन थिंग विच इज़ नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट के अलावा एक और सेट मैंने बताया था, याद करें। नल सेट का दूसरा नाम क्या था, एम्प्टी सेट था, तीसरा नाम क्या था। ठीक है, आपने मुझे बताना है ऑनलाइन लेक्चर में। जो मेरी बातें गौर से सुन रहा है, आप लोगों को याद रहनी चाहिए और मुझे लेक्चर में बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलें। Here we can see that A intersection B is equal to B intersection A, which means LHS is equal to RHS. चलें, सेम क्वेश्चन बट द सेकंड पार्ट। अच्छा, अब गौर से देखें, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इधर बेटा। यहाँ पर गलती से इंटरसेक्शन बीच में आ गया है। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। चलें देखें, बी इंटरसेक्शन सी मैंने लिखा, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी लिखा। जी, दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो मैंने दोनों के दरमियान कॉमन जो एलिमेंट था उसको लिस्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर, 6 आ गया। क्या कह सकते हैं दोनों सेम है, जी बिल्कुल दोनों सेम है, यानी LHS और RHS प्रूव है। क्या लिखेंगे इसके नीचे, एक लाइन लिखनी है आप लोगों ने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन अप्लाइज। ठीक है, सॉल्व पार्ट 3 बाय योर ओन। होम असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन 12 के ऑल पार्ट्स आपने घर से करने हैं कॉपीज़ में। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं उस सरप्राइज़ की तरफ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। क्या कहा था मैंने, गौर से सुना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट पता करना है। अगर आपको ए पता है 1 3 5 7 9 और ए कॉम्प्लीमेंट पता है 4 5 6 7 12, अब सोच के बताएं कि जब मुझे ए पता है और ए कॉम्प्लीमेंट पता है, ए कॉम्प्लीमेंट आप बखूबी जानते हैं क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल में से ए माइनस हुआ है। ठीक है, ये कौन सा सेट है जिसके अंदर यूनिवर्सल में से ए माइनस हुआ है। तो मैं क्या करूं कि यूनिवर्सल सेट आ जाए मेरे पास, गौर से सोच के बताइएगा मुझे। जो बच्चा इसको सॉल्व कर लाएगा, द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, एक बच्चा या जितने स्टूडेंट्स सॉल्व करके लेके आएंगे विद इन 1 आवर ऑफ द वीडियो, 1 घंटे के अंदर अंदर जब मैंने वीडियो अपलोड की है, पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस बात का जवाब ढूंढकर आपने कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कमेंट्स में बताएंगे आप लोग
और फिर जिसने कमेंट्स में सही बताया उसको 3 मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर नेम्स विल बी मैंशनड इन द नेक्स्ट वीडियो के वो बच्चे थे जिन्होंने प्रॉपर्ली अच्छी तरह सॉल्व करके दिखाया, और उनके नाम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा, और क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी मेंशन करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। नोट, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो एंड नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपको सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ाया है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कौन सा क्वेश्चन घर के लिए दिया है, सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलें, आज का लेक्चर इतना ही था। होप सो आपको समझ में आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग अपना चैप्टर, अब आपका वाइंड अप होने जा रहा है, इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो नोटबुक्स में मेंशन करिएगा। जब हमारी क्लास हो तो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। अभी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल आपसे ऑनलाइन लेक्चर में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैरा।